Okay, great. So now, first of all, I'll show you the vendor, this thing, UPOS calculator, wherein a person, when we propose someone कि he should buy a UPOS, we should first of all set the expectation right, right? Just hold on, huh? Okay, yeah. So first thing that you should ask from your prospect is what is that will influence him to buy this UPOS immediately. That is, what is that percentage of return on investment. So let's say if he is buying this UPOS, what is his expectation of returns from this? Because every business, when you invest, let's say you buy a franchise for some brand, you open a showroom, or you do your own business, there is an expectation of ROI of that business, no? So just ask him what is the ROI he expects. I think the best ROI that can be earned from any business is 15% per annum. So his expectation would be, let's say, 8,100. But let's assume that he says that I want 100% ROI. You can write 100% ROI, but also tell him that, sir, can you tell me any business which gives you 100% ROI year on and year? I think he will not be able to tell you what business is that, right? But let's assume that he wants 100% ROI from this UPOS. And if we give them that guarantee that this 100% ROI will come, he will be more than happy. So now just ask him, how many users do you think that he can bring into the system just for doing the trading? Who pays the light bill, who does the grocery billing, like all milk, groceries, or whatever it is there, clothing, whatever, the entire catalog of our expense. Just ask him ki how many users he can bring in. Let's say he says that I can bring in 10 users per month, no issue. Again, you ask him, sir, do you know any business where you earn 100% ROI and that guy has to service only 10 customers? Of course, he will say again no, but then you take that number for granted. And in your UPOS, there is a very good facility given wherein you can create 18 agents for free, which means that these 18 agents can enjoy UPOS at zero cost because they will be using your extension. And this is as good as UPOS. Only difference between a main UPOS and this UPOS is that this UPOS doesn't have the wallet. Rest everything is as it is. So now you can give him, give these guys, the agents that you are making, you can tell them that because I have invested in the product, so let's share 50-50. You are not investing anything, but let's say you bring in customer and you take 50% commission on that. And let's say he only assures us ki, okay, I'll give 5 customers every month. I think which will be very easy for him. So now let's see what is the earning potential of this model. Now just go and see. Look, new customer every month would be 100. How this number has come is simple. 10 customers from my side, 90 customers from my agent side. So 100 customers per month, which means in a year's time we will be reaching 120 customers, right? And together it is 1200 customers. 1080 customers from my agents and 120 customers from myself, right? Now let's show them the potential of this UPOS. Then you have to do a small analysis of expenses of a user. So let's say just give him a number that can you see that light bill, telephone bill, mobile bill, water bill, D2H, Amazon Prime, Z5, all this including, would a family would be having an expense of 5,000 rupees? He will say yes, 5,000 would be easy. Or if he says any number low or up, you can do that. Once I go through this, you can involve yourself by telling me what number you want to reduce or what number you want to increase. So let me first go through this and then you can do tell me that, right? And the best part is we have taken the lowest commission that Global Garner gives you.
on a UPOS. We are not talking about the 8%, the 10%, the 20% commission slabs. We are talking only 0.25, 0.5, 0.3% and 2% flat, which is easily earned on the UPOS. So now any user will come to us. Now you can tell him, no. So first of all, his user, matlab, his own users will give him 28 lakh rupees upfront income. Correct? His agents, by giving only 5 customers a month, they will be earning 7 lakh rupees a year. And as a UPOS, because I have the 50% sharing on my agent commission also, I will also get 1 crore 27 lakh 17,000. So in totality, plus, because I am a UPOS owner, I will be also encashing the benefit of getting 10 times GG coins. So let's say if I have earned 28 lakh rupees as my annual income, so I would have also earned 2 crore 82 lakh as GG coins, which again I can use in my circle and convert them into real money, but I am not considering that income right now. Okay. Plus there would be a huge income in terms of user referral. So let's say if even 10% of my customer are diverted to my circle, then I am eligible to earn 1 crore 20 lakh, right? And my agent will also earn 60 lakh rupees because he is giving 5 customers, so it is half. I am giving 10 customers, so I am earning double. Plus, if we even consider that 90% customer opt for the IC cashback, which is instant cashback, still you will be earning 2.8 lakh rupees as a referral income, and your agent will be also be earning 1.9 lakh rupees as a referral income. So in totality, you would be earning cash income of 2 crore 78 lakhs. Please mute your mics. Okay. So if you see that total income on UPOS would be for the UPOS owner would be 2 crore 78 lakhs 26,824 rupees, and agent would be earning 68 lakh without investing anything in a year's time. And best part would be once we have reached 9 lakh UPOS, these agents will have no other revenue than to continue to join you, because after 9 lakh UPOS we will not be selling more UPOS. So this income will keep on coming to you as a UPOS owner. And still in this calculator we have not calculated the high revenue products, the referral income from FIFO, RPP or referred vendors, and your My Circle cashback, because you would be having the biggest eligibility to start My Circle because so many customers are around you. So you can actually motivate at least 10 people in a month to join your circle. Plus, because you are getting extra coins with you, you can do the coin trading, because every user will not be spending 70 lakh rupees in next 9 months. So you can give them your coins at cost. Correct? So this is a basic thing that I wanted to tell you in UPOS. Now you can, I am open to discussion if you want to edit this Excel and see what are the results. If you are still there is something which you want to understand, please go ahead. Now you can unmute. Whoever wants to unmute, just one person at a time, and then we can discuss. Yeah, please go ahead. हेलो. Yeah. सर ये कैलकुलेशन में यूपॉस एजेंट के इनकम में हमारे इसमें थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है सर. हाँ, क्योंकि आपके पास जो कैलकुलेटर है वो गलत है. मैं अभी आपको ये भेज दूंगा. कल क्या हुआ, कल कई लोगों ने हमें फीडबैक दिया तो उसके हिसाब से हमने इसको सही भी किया है. ओके ओके. और दूसरा सर, ये जो अपन एजेंट मिल रहे हैं अपने को यूपॉस पे, इसके लिए क्या इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये अपने यूजर होना चाहिए? ये आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं. लेट से आप एसीपी हैं
तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, जिस वेंडर से मिलने चाहिए उसको आप अपना यूपॉस एजेंट बना लीजिए। ओके नेक्स्ट स्लाइड में वही बताने वाला हूं कि आपके लिए कितना आसान होगा 2 महीने में ये 18 यूपॉस बेच डालना। आपके पार्टनर के लिए कितना आसान होगा ये 18 एजेंट बना के अपने वेंडर बना लेना। ओके इनको क्या सर हमारे थ्रू रेफरल भेज के यूजर बनाना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो आपके अपने जो यूजर हैं उनका रेफरल बता रहा हूं। ये रेफरल वाली ये आपकी है, उनकी रेफरल इनकम उनको जा रही है, उसमें शेयरिंग नहीं है। अगर वो सेम कस्टमर देते हैं आपको, मान लीजिए आप 10 कस्टमर ले रहे हैं तो ये इनकम दोनों की देखिए सेम है। 1 करोड़ 20 लाख आपका भी है, 1 करोड़ 20 लाख उनका भी है, 2,83,000 आपका भी है, 2,83,000 उनका भी है। तो अगर दोनों लोग 10 कस्टमर पे वर्क कर सकते हैं महीने में तो ये इनकम दोनों लोगों को मिलेगी। केवल डिफरेंस होगा जो यूपॉस पे इनकम आ रही है। जैसे आपको 28 लाख मिलेगी प्लस आपको 2 करोड़ 54 लाख भी मिलेगी, क्योंकि आपका यूपॉस हो रहा है और 50% आपकी शेयरिंग है। 18 लोगों में आपकी शेयरिंग है, मगर वो 18 लोग भी इंडिविजुअली 14 लाख रुपए साल का कमा रहे होंगे। ओके ओके। तो इसमें क्या होगा, जब आदमी को ये दिखेगा ना कि इसमें इतनी अच्छी इनकम है तो वो आपसे तुरंत यूपॉस बाय करना चाहेगा। तो जो हम लोग सोच रहे हैं ना 9 लाख यूपॉस करने में हमें लेट से साल भर लगेगा या 2 साल लगेगा, वो मैं देख पा रहा हूं कि अब ये शायद 2 महीने में 3 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल बरोबर है सर। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए अभी उसको क्या दिखेगा, यार 14 लाख रुपए का मैंने साल में कमाया, मगर वो कमाई नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, मैंने 14 लाख रुपए साल का गवाया। हाँ करेक्ट। तो वो तुरंत यूपॉस उसको मिल रहे हैं। ओके। और मगर क्या होगा एंड में, आफ्टर 9 लाख यूपॉस उनको झक मार के किसी ना किसी यूपॉस में रहना पड़ेगा। हाँ हाँ राइट। यस, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर। या anybody else who wants to know anything about any column that he is not able to understand in UPOS? So I think anybody, if you see the ROI, I think this ROI cannot be even compared also with anything. Correct? Anybody would be expecting more than 100% ROI. Here what you are giving is something really extraordinary. But this is the new way to look at UPOS. And now, जी विकास रियल एस्टेट के बारे में। विकास जी, गुड मॉर्निंग। Good morning. Tell me. Yeah, I don't know the question. I don't know the answer. No issue. Thank you. विकास सर, I have a question. मेरा क्वेश्चन है रियल एस्टेट के बारे में। जी, रियल एस्टेट का हम लोग दिखा रहे 30 लाख, इज इट पर कस्टमर ईयर, ऐसा पर मंथ, ऐसा कुछ है कि हमारे जितने कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उसमें केवल 10% लोगों को हम रियल एस्टेट बेच पाएंगे। अब हाँ, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि हम देखते हैं कि जीरो, अगर हम रियल एस्टेट जीरो कर दें और लोन को भी जीरो कर दें तो क्या इनकम होती है। ठीक है ना, बाकी तो बेसिक एक्सपेंस हैं, बाकी तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर रियल एस्टेट और इसको जीरो कर देते हैं हम तो हमारी क्या इनकम है। तब भी अगर आप देखेंगे तो यूपॉस वाले की इनकम 2 करोड़ 87 लाख है, पहले 4.5 करोड़ रुपए आ रही थी, अभी 2 करोड़ 87 लाख आ रही है साल की। और एजेंट की भी अभी भी अच्छी है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ रहा है। और इसमें अगर हम इसको भी जीरो कर दें, माई सर्किल को भी जीरो कर दें, तो भी 1 करोड़ 67 लाख यूपॉस वाले को आ रहा है और 10 लाख रुपए साल का एजेंट को भी आ रहा है। ओके। और ऊपर वो एक रियल एस्टेट के सामने 3 लाख का अमाउंट लिखा हुआ है, वो 30 लाख का सॉरी, रियल एस्टेट हेडर के सामने 30 लाख रुपए। हाँ जी, वही। तो ये तो जीरो कर दिया ना मैंने, इधर जीरो कर दिया तो ये अपने आप जीरो हो गया। देखिए ये लिखा है ना, टोटल प्रॉपर्टी सोल्ड इज जीरो। ओके, लगा हुआ ना, आप इसको जीरो करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैंने जीरो कर दिया, वैल्यू नीचे सेम ही रहेगी क्योंकि मैंने एक तरफ जीरो कर दिया था ना। जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुछ भी जीरो ही हो जाता है। देखिए कोई चेंज नहीं हुई। 1 करोड़ 37 लाख अभी 67 लाख अभी भी है और 10 लाख 35 हजार अभी भी है। और एजेंट को ये इनकम बिना 1 रुपए भी इन्वेस्ट किए मिल रही है। सिर्फ वो 5-10 कस्टमर लाया है। अगर वो 5 कस्टमर भी लाता है महीने के आपके लिए तो आपको उसको 5 लाख रुपए साल की इनकम मिलती है। आज 5 लाख रुपए सीटीसी के लिए आपको कितना काम करना पड़ता है आपको बेटर पता है। और हम यहाँ पे 5 कस्टमर केवल महीने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। विकास जी, इसमें एजेंट के साथ में जो ये प्रॉफिट शेयरिंग होगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा फिर? आप अपने यूपॉस में ही डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है ना कि 50% शेयरिंग करेंगे,
वैसे ही जब आप एजेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक वैल्यू डालनी पड़ती है आपको कि आप एजेंट के साथ कितना शेयर करना चाहते हैं। तो जब आप वो पंच कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि एजेंट को हर महीने आपके पास आके पैसा मांगना है। वो जैसे ही ट्रांजैक्शन करेगा कमीशन स्प्लिट होके जितना उसको जाना है उसको चला जाएगा, जितना आपके पास आना है आपके पास आ जाएगा। ओके, तो उसके अकाउंट में मतलब उसके जब हम रजिस्टर करेंगे तो उसके भी पूरे बैंक डिटेल जाएगी, तो उसके अकाउंट में उतना चला जाएगा, मेरे अकाउंट में उतना आ जाएगा? नहीं, उसका भी एक वॉलेट होगा जिसमें वो पैसा चला जाएगा, फिर वो अपने किसी भी बैंक अकाउंट में निकाल सकता है उस पैसे को। अच्छा, ओके, वॉलेट में जाएगा। जी जी, ओके। उसको रजिस्टर करने के लिए हमें को उसकी बैंक डिटेल वगैरह नहीं चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, उसमें बिल्कुल सिंपल केवाईसी है, वो आप एक बार देख लेना उसमें अमित से, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो वो एजेंट क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा पैनल है, वो बस अपना यूजर होना चाहिए। यूजर आईडी से ही आप किसी को भी अपना एजेंट बना सकते हैं। जी, आप कोई पूछ रहा था कुछ? चंद्र कुमार सर। या प्लीज सर, you said that your agent commissions, right? Does that hold together all the 18 agents commissions or an individual agent commission, sir? This is all 18 agents commission. मतलब they have taken an average of that. You might be negotiating with someone with 70%. You might be negotiating with someone for 30%. So this negotiation is with you. I am considering that you are agreeing to give. Okay. So this is totally up to you. So let's say there is some agent whom you want to give 70%. You can do that in the software. So every agent can have different commission slab. That is not a problem. Okay. Sir, how to manage that wallet, sir? Because I am the UPass holder. So if I recharge the wallet, if some of my agents recharged or use that wallet amount, so how can I monitor? Is that any? You cannot use your wallet directly. Whenever they will punch any sale which is linked with your wallet, the approval will instantly come to you only. So you have to approve that transaction, then only that wallet will be used. Else he cannot use your wallet directly. Okay. Your approval would be required from your own UPOS. It is not that he is going to do it from his UPOS. He can only punch that sales. Once he punches that sale, instantly within seconds it will be reflecting on your UPOS, and then you can approve or disapprove also. Okay, sir. Okay. स्क्रीन का थोड़ा नीचे वाला भाग शेयर कीजिए सर। Sorry? नीचे का पार्ट शेयर कीजिए सर स्क्रीन का। Vikas ji, I have one question. Thank you, sir. Yeah. Can the agent have his own wallet? Can he? We'll give you agent wallet also. So what will be the difference between UPOS and the agent UPOS? Then there will be. No. If at all he wants to fill his wallet, is it possible? He can fill your wallet. So let's say if he wants to do a 10,000 rupees transaction, he can fill your wallet. Oh, he can't do it on his own. विकास जी, या सर ये अपन 18 एजेंट इसमें बनाते हैं जी, तो वो जब 18 एजेंट लेट से कि वो अगले महीने अपना खुद का यूपोस खरीद लेते हैं जी, तो अपन क्या अगले 18 वापस से बना सकते हैं उसमें एजेंट? हाँ, आप उनको रिमूव कर दीजिए। इसीलिए तो ये हमने फीचर दिया है। एक्चुअली क्या अभी यूपॉस लोगों को समझ में नहीं आता यार, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो उनको मैं ये कह रहा हूँ करोड़ों की बातें छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने 10,000 भी कमा लिया ना, वो अगले महीने आपसे यूपॉस ले लेंगे, क्योंकि जो व्यापारी है वो 10,000 कमाने की नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि वो 10,000 गवा रहा है। और अगर वो किसी भी बैंक से अपना ईएमआई कराएगा तो 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में वो यूपॉस की ईएमआई करवा सकता है, क्योंकि यूपॉस है कितने का, केवल 50-60 हजार रुपए का। तो उसको एक बार समझ में आने की, ये हमने फीचर इसलिए बनाया कि लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा, जब हम 9 लाख यूपॉस पे पहुंच जाएंगे तब लोगों को झक मार के हमारे यूपॉस वालों के पास जाके एजेंट बनना पड़ेगा। तो यूपॉस वाले की एक बहुत बड़ी इनकम गारंटी हो जाएगी कि लेट से मैं अपने यूजर एक भी नहीं ला रहा हूं, बट मैंने अपना एक्सटेंशन लोगों को दे दिया, तब भी मैं कमाऊंगा। मेरी सेल्फ अर्निंग कुछ नहीं है, बट फिर भी मेरा ये अर्निंग तो रहेगा ही ना लाइफ लॉन्ग। मतलब एट अ टाइम हम 18 जनों को ही एजेंट बना सकते हैं? नहीं, अगर आप गोल्ड, जैसे अभी कर्नाटका वालों ने गोल्ड लिया, उसमें आप अनलिमिटेड एजेंट बना सकते हैं, वो 90,000 रुपए का आता है। अच्छा, तो उसमें अलग अलग फीचर्स वाले हमारे पास 9,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक के यूपॉस है, बट अभी हम प्रमोट केवल ये वाला करते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल है समझने के लिए। अपग्रेडेशन भी पॉसिबल है क्या सर? जी पॉसिबल है, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इंसेंटिव नहीं मिलेगा आपको।
लेट्स एज एन एसीपी आपने किसी को यूपॉस सेल करा सिल्वर पैकेज, कल को वो गोल्ड में माइग्रेट करता है तो उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा कि उसको डिफरेंस पे करके वो माइग्रेट कर सकता है। सो लेट्स से किसी ने आज 50,000 रुपए का यूपॉस खरीदा, कल को उसको 3,60,000 वाला चाहिए पैकेज पूरा, तो हम उसको 50,000 माइनस करके 3,60,000 दे देंगे, मतलब उसको 2,90,000 वो पूरा सेंटर बना के दे देंगे। 3,60,000 में बेसिकली क्या हमारा इन्वेंट्री बहुत लगता है, 65 इंच का टीवी भी देते हैं, पीसी भी देते हैं, पूरा शॉप डेकोरेट भी करते हैं, बैनरिंग पूरा एक 100 स्क्वायर फीट का पूरा शॉप बना के देते हैं कि जहां लोग आके उसके स्क्रीन पे देख के शॉपिंग कर सकें। बट वो कमीशन नहीं मिलेगा, वो नहीं समझा बेसिकली। मतलब लेट्स से आपने किसी को, लेट्स से आपने मुझे अभी यूपॉस बेचा, आपको आज कमीशन मिल गया यूपॉस बेचने का, बट अब मैंने वन टाइम सेल कमीशन, कल को मैंने अपग्रेड कर दिया, तो जो मैं अपग्रेड करने में पैसा लगा रहा हूं उसमें जिसने बेचा है उसको कमीशन वन टाइम वाला नहीं मिलेगा, रेगुलर वाला तो मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कमा रहा है वो तो उसमें तो रेगुलर लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा, बट जो वन टाइम कमीशन है वो दोबारा से नहीं मिलेगा। एजेंट जो है 18 एजेंट है बेसिकली, वो खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, सिंस हमारे थ्रू मेरा वॉलेट यूज कर रहा है, तो जब भी ट्रांजैक्शन करना है तो एजेंट मुझे कॉल करेगा फाइनल अप्रूवल के लिए? कॉल नहीं करेगा, आपके यूपॉस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब इसमें कोई ऐसा फोन करने की जरूरत नहीं। जैसे अपने नॉर्मली कंपनीज में कैसे होता है कि कोई कहीं पंच करता है कि सर ये अप्रूव कर दो, तो ऐसा नहीं है कि फोन करना पड़ता, आप अपना कोई बिल रिम्बर्समेंट का पंच करते हैं तो जो अकाउंटेंट होता है उसको ऑटोमेटिकली चला जाता है कि भाई ये बिल रेज हुआ है, तो वो अप्रूव या रिजेक्ट कर देता है। वैसे ही आपके पास होगा पैनल कि आप जहां पे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो उसकी ट्रांजेक्शन को। वो मुझे कॉल कर रहा है और उस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं हूँ और उसको इमीडिएट ट्रांजैक्शन करना है, तो वो रुकना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, क्योंकि आपका वॉलेट हम किसी को ऐसे नहीं यूज करने दे सकते ना। राइट, तो सेम वे सर, वैसे भी हम उसको एजेंट को कमीशन 50-50% कर रहे हैं, लेट से कि उसका अगर हम वॉलेट भी बनाते हैं तो भी सर तकलीफ नहीं होगा ना, मतलब फिर भी वैसे भी खुद भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बोलूंगा, रिपीट करूंगा अपने आप को, फिर आप यूपॉस का पर्पस खत्म कर देंगे, फिर आप यूपॉस बेच नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। सबसे पहले प्रॉब्लम का लॉस है ना उसका, मतलब उसको भी पता है कि मैं खुद का खरीदूंगा तो 50% मुझे एडिशनल बेनिफिट होगा करके। फिर नहीं, फिर मैं आपको ये तो आप शरीफ हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, वरना कोई 90,000 वाला हमारा लेगा पैकेज और उसमें क्या करेगा, अनलिमिटेड एजेंट बना देगा। अनलिमिटेड एजेंट बना दिया उसने और सबने आपस में साठ-गांठ कर ली कि एक काम करो 90,000 रुपए सब लोग मिलकर दे देते हैं, सब 100% कमीशन, कोई बाइफिकेशन नहीं होगा, 100% हम सब लोग रख लेंगे, फिर तो एक यूपॉस बिकेगा और पूरा इंडिया उसी पे चलेगा। राइट, अंडरस्टूड, करेक्ट, या थैंक यू सर। विकास जी, I have a question. Because how to add agent here? That technical session you have to take it from Amit. It is a very simple process, 15-minute process, and you will be able to add agent. Now let's go to the vendor sheet. I need to complete that vendor sheet. Then विकास जी, हेलो, एक प्रश्न सर। या विकास जी, मुझे ये जो आपने इनकम पर पीए लिखा है ना, उसके बारे में थोड़ा एक बार वापस समझाइए कि यूपॉस ओनर का सेल्फ इनकम एंड यूपॉस एजेंट का जो इनकम आपने बताया, जैसे टोटल इनकम आपने 13,800 रुपीज एक वन कस्टमर से बताया है जी, और जैसे यूपॉस ओनर सेलर जो है ये अपने जैसे ऊपर बताया है कि साल में 10 कस्टमर करता है, साल में नहीं, महीने के 10, ठीक है, 120 कस्टममर उसने करा तो 120 कस्टमर हो गए। हाँ, सेल्फ तो 13,800 मल्टीप्लाई बाय 120 बिल्कुल का इनकम हुआ, बिल्कुल या बिल्कुल। एक सेकंड मैं आपको कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए 16,56,000 आया, वही यहाँ पे आया हुआ है। हाँ, और सर ये यूपॉस एजेंट अभी जैसे आपने कहा कि 5 कस्टमर पर मंथ बनाएगा, जी, तो 18 एजेंट से थे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 into 12, बिल्कुल। हाँ, सो उनका इनकम जो भी है वो ये 4,14,000, बिल्कुल, ये उनका इनकम है जी। और ये क्या है, यूपॉस ओनर इनकम फ्रॉम एजेंट। अब ये इनको तो 4,14,000 मिला, मगर 4,14,000 रुपए यूपॉस वाले को भी तो मिलेगा ना। हाँ ठीक है, तो मिलेगा, तो 4,14,000 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दीजिए। अच्छा, ये इंडिविजुअल का है यूपॉस एजेंट इनकम, ये इंडिविजुअल का 4 लाख, ये इंडिविजुअल का 4 लाख हो गया, और यूपॉस ओनर, क्योंकि यूपॉस ओनर के पास 18 एजेंट हैं, तो ये 4 लाख रुपए हर एजेंट से उसको मिल रहा है ना हर साल का। ओके, तो ये यूपॉस ओनर की इनकम हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला? सब थोड़ा उधर ही कंफ्यूजन आ रहा है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। समझिए,
एक एजेंट ने 10 लाख रुपए साल का कमाया, एजेंट ने मान लीजिए 4,14,000 कमाया, मेरा इसके साथ शेयरिंग कितना है? 50%। ठीक है, अगर ये 50% नहीं होता, रुकिए 100% कर देता हूं, अगर ये 50% नहीं होता और 10-10 यूजर हम दोनों लोग लगा रहे होते, 100% ये ले जा रहा होता, तो हम दोनों की इनकम सेम होती। करेक्ट है? बराबर। यहां तक समझ में आ गया? और देखिए मेरी यहां पे इनकम 0 हो गई, बट अब मैंने इसको 50% कर दिया, तो इसका 50% कम हो गया, तो वो कम जो हुआ वो मेरे में ऐड हो गया, क्योंकि अब 50% शेयरिंग मेरे में आ गई, तो 1.5 करोड़ रुपए मुझे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 8,28,000 मल्टीप्लाई बाय 18 ये मेरे से आ गया। लेकिन इधर है वो जैसे 50% करने पे लास्ट टाइम इट वाज 4 लाख रुपीस ना, यहाँ पे कुछ 4 लाख समथिंग था यूपॉज का। नहीं यहाँ पे मैंने क्योंकि कस्टमर भी कम लिए थे ना, 5 कर दिए, जो वापस 5 करूंगा तो वापस वही हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। तो एक्चुअली मुझे जो समझता है कि जब इनिशियली अगर अपन किसी एजेंट को या किसी को यूपॉज भेज रहे तो यहाँ तक भी उसको समझा दिया तो बाकी माय सर्कल ये सब तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग में। धीरे-धीरे लोगों तक भी समझा दीजिए, धीरे-धीरे लोगों को ग्रेजुएट करिए। क्योंकि अभी मैंने सब कुछ एक साथ बताएंगे तो कस्टमर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने माय सर्कल को भी यहाँ पे 0 ही रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं केवल 10% भी करता हूँ तो आप अपनी इनकम देखो कहाँ पहुंच जाएगी। क्योंकि सर एक साथ सब कुछ बताने जाएंगे तो कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप कम बताओ, बट ये कम भी अपना इतना बड़ा है ना कि आदमी को समझ में नहीं आएगा। बट आदमी के साथ आएगा, बोलेगा हाँ पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर पैसा कमाएंगे तो अपने बात कर लेंगे अगले महीने। बराबर बराबर करेक्ट है। बराबर। अब एक बार क्वेश्चन sir, last one question I have. Yeah, please sir, in the UPOS calculator when you are calculating the total expense, actually there is a big difference between the customers who join first month and customers who join in the say month of December. Okay. So if this is not considered in UPOS like a monthly expense calculation. Look, what I am telling you is after 12 months, what is the income that you can expect? No sir, first those who have joined in first month, they have more potential to spend than those who are joining in the 12th month. So this you have considered flat for everyone. You are using like same calculation. This is a huge calculator. What I am trying to say is, if I am able to make you understand that there is a 10 rupee income in this, if you will get 100 rupee, you will not say because you have told me anything wrong, right? No. Sir, actually when I calculate as per this UPOS calculation, if I get 100 rupees income and if I modify the formula, then it will be reduced to half. Like if I calculate the mean total expense from month 1 to month 12, the total income of the UPOS owner will reduce. That though I have considered 0. I am not considering what he is earning in next 12 months. What I am considering is after 1 year, 120 customer, what income they will give it to him. What including the journey of this 12 month is not a concern to me. What I am telling you is that once I am hitting this number, which is 120 users, this is the income that I am going to generate every year now. No, on the higher part, when you calculate, total income will be high for the UPOS owner. If you calculate the actual value, like first month, those who are joined have more potential to spend. Likewise, if you keep on reducing. What I'm saying, please understand what I'm saying. I'm saying for first 12 months, I'm considering it to be 0. Okay. I'm considering even 1 rupee. Okay. I am saying that 120 users after 1 year. See what I have written. Okay, fine. So that is a bonus. What you get in 12 months is your bonus. Yes. Everywhere I am writing this only. Give 12 months to this business and you will get that financial freedom. Right? In any of our presentation, if you'll see, if you are performing, let's say what Tamil Nadu just did. They sold 100 UPOS. The income is approximately 8.5 lakh has already gone to them. Whereas I say in every meeting that you have to work for 12 months and then the income will start. Their income has already started and in 40 days they have earned 8.5 lakh rupees. Right? Yes. So that is a... One more question in the insurance part. Yeah.
like all those who are working in white collar jobs, they will have a plan like NPS, PPF, postal, LIC, all that. So once we like ask them to migrate to private insurance, they'll not be able to do that because most I'm not saying to migrate to private insurance, first of all. Secondly, whatever insurance they are buying, we will give them options. Secondly, there is a probability of 2.5 lakh rupees which can come into 80C, 80D, then the parent insurance, then the health insurance, and car and bike insurance. So they have already invested in many of the plans like LIC, PPF. They cannot come like switch over to private. Who says? No, those who have already invested in LIC. Global Gartner, why would they not? You tell me this. Because all ULIP policy have that feature that they can stop policy anyway after 3 years. And let's say, let's not debate on that. Put that as 0. Yeah. It cannot be below 0, no? Yes. I have done it 0. Then also see the income. Okay. Good? Yes, understood. Do not debate with your prospect. Whatever he says is okay. Because his expectation is only 100% ROI. Please understand. Yes, sir. What you are offering him is too high. Too high. Even you make almost 80% department 0, then also his income will be good. Because he cannot say anything below 0, no? Yes. So let's say he says your light bill to be 0. He says that your clothing is also 0. He says your flight is also 0. He says travel and food is also 0. He says electronics and other expenses are also 0. Still you see 4.3 lakh rupees for the UPOS and 39,000 for the agent. When we have done everything 0, only we have taken grocery in consideration. Yes, sir. Because at least we will have food, basic food and we will have, no? Yeah. So yeah. विकास जी गोल्ड वाला यूपॉस जो है उसमें कमीशन स्ट्रक्चर अलग है क्या यूपॉस ओनर के लिए? सेम है? ये है कि उसमें हम एक आईपैड भी आपको देते हैं साथ में और उसमें आप अनलिमिटेड एजेंट बना सकते हैं. डेडिकेटेड टैब हम आपको देंगे सैमसंग या एप्पल का जो भी आपकी चॉइस होगी उसमें हम वो इंस्टॉल करके देंगे आपको और उसमें आप अनलिमिटेड एजेंट बना सकते हैं. डिवाइस भी हमारी तरफ से मिल जाता है कि आप उसको यूज कर सकते हो. ओके. और कमीशन स्ट्रक्चर सेम रहेगा? कमीशन स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है. कमीशन स्ट्रक्चर इनफैक्ट तीनों सारे ऑप्शन में सेम है. केवल फर्क यही है कि आपको वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा मिलने लगते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि 3,60,000 वाले में हम टीवी भी लगा के देंगे आपको हम ये कंप्यूटर भी लगा के देंगे, पूरी ब्रांडिंग करके देंगे और 1 किलोमीटर रेडियस का एक्सक्लूसिविटी भी देंगे कि आपने 3,60,000 का अगर आउटलेट हमसे ले लिया है तो 1 किलोमीटर रेडियस में हम दूसरा कोई आउटलेट खोलेंगे भी नहीं. कोई दूसरा हमारे पास आएगा तो 1 किलोमीटर रेडियस तक हम उसको कोई आउटलेट नहीं देंगे. तो कैन वी गो ऑन वेंडर कैलकुलेटर नाउ? और सर जो 3.5 लाख का अपना यूपॉस है उसमें हम लोग एजेंट भी अनलिमिटेड बना सकते हैं. हाँ, उसमें एजेंट भी आप अनलिमिटेड बना सकते हैं. विकास जी अगर आप 3.5 लाख वाला बोल रहे हो और उसी एरिया में ऑलरेडी किसी ने यूपॉस लेके रखा है. नहीं, यूपॉस इज डिफरेंट. यूपॉस लोगों को पता नहीं होता ना. जैसे आपका फिजिकल स्टोर होगा तो लोगों को पता चलेगा, वो आपके पास आ सकते हैं. फिजिकली पता नहीं चलता है क्योंकि वो टोटली डिजिटल है. जो सिल्वर वाला इट इज जस्ट लाइक अमेज़न इजी. हाँ, अमेज़न इजी जैसा. वो 3,60,000 वाला जो है हमारा, वो समझ लीजिए एक अमेज़न इजी वाला शॉप है. करेक्ट? Can this UPOS silver wala UPOS owner can he set up a shop as what you said like yes he can do it at his cost also. I have no issue with that. ठीक है. इसमें एक्चुअली यूपीबी एंड शॉपिंग वो सब सेम मिलता है, अदरवाइज एनी डिफरेंसेस रहता सर यूपीबी में? सॉरी सर एक्चुअली आप अपग्रेड करें तो गोल्ड को यूपॉस का सिल्वर में 5 यूपीबी मिल रहा है और पेटीएम का मूवी वोचर मिल रहा है ना सर? करेक्ट. और उसमें अपग्रेड करें तो कुछ अलग मिलता है? उसमें बहुत सारी चीजें अलग हैं. उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं आपको. उसमें कुछ हमने स्कीम्स भी बना के दी हैं कि आप 1 लाख रुपए महीना मिनिमम अर्न कर पाओगे. So just go through our UPOS page. You will find every detail of that. If we will have time, I think we are already running short of time. I think you all would like to go. But विकास जी, yeah. हाँ, ये सपोज हमने 18 एजेंट बना दिए
और हमें कैसे पता चलेगा कि किसने कितना वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर किया? वो सब आपको पूरा डैशबोर्ड जो मिला हुआ है ना, उसमें सारी डिटेल आती है कि उस एजेंट ने कितनी सेल करी है, उसका कितना कमीशन है, सब कुछ आपको डैशबोर्ड पे हमने दिया है, आपके यूपॉस के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सर। और एनीथिंग, और आप ये पूरा एक्सेल वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पे। और लेट से अगर आप लोग को कोई भी फीडबैक हो, जिन लोगों के पास यूपॉस है और आपको लगता है कोई एक फीचर हमें डालना चाहिए जिससे आपको इजी हो अपनी मॉनिटरिंग करने में, प्लीज टेल अस, बिकॉज सॉफ्टवेयर हम खुद बनाते हैं, हमें तीसरे डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना पड़ता है, तो वो फीचर हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं। Sir, last question. Yeah. Okay. Actually, I am talking about in the favor of new. Sorry, I am not getting your voice clearly. Please be. I am talking on behalf of a new user who downloaded recently and he wants to use somewhere in the vendor somewhere in shop. Correct. Your code is not available in our app. Sorry, I am not able to understand. Some voice is not clear. No, in our app, why QR code is not available? QR code is not available means which? Because it is a very friendly. Because anybody can scan and do payment. कौन है भाई? In every app, QR code is available. Why in our app QR code is not available? Just hold on. I will first mute everybody and then you unmute, है ना? Just hold on. Now you can unmute your mic. In every app, so QR code is available. Why not with our app QR code is not available? Which QR? QR code. Why it is not with us? Because we have included entered so many features. Hello? I'm asking which QR you are asking about. No. Any user can easily scan and do the payment. How we are doing a phone pay, Google Pay. QR is available with the vendor, no? Why should we have it in the app? Payment has to be done to a vendor, no? To vendor QR. To vendor will give a QR code. Yes, of course, it is there with the vendor. So, and also you can just go on the upload bill option, and when you will open the QR scanner, you will scan that QR and you can do that. Right? Okay. Now let's first focus on the vendor module also, because else we will keep on doing the question answer session. So now let's see that we saw that buying a UPOS is a good benefit, but of course when we will go to a vendor, he will not immediately buy that UPOS, because again he also experience the same thing. So now when you go to a vendor and you have your own UPOS, immediately appoint him as your agent at zero cost. So with zero cost, anybody would like to become our UPOS agent? Now you just set an expectation with him also, like you did for the UPOS, or na? Same expectation that now I want you to sell your product at 6% with us. And if you have only 100 customers, we will give, and again same thing, we will have 50% commission sharing. Now just show him the same calculator that I have showed you, same user expense, same everything, and we have done this real estate and this zero here also. So if let's do it, at least take 10 each, then we'll make it zero. So let's say he has only 100 customers. So he is not adding new customers also. He is just giving his 100 customers a new service through our Global Garners UPOS. Now his earning, जो UPOS है, उसकी earning will be 6,24,000 from that vendor. Sorry, this vendor will be earning this much, but now just see the referral income and everything. You will find that 7,83,000 would be his income. So per month he would be earning 65,000 from us just by servicing 100 customers. Correct? And let me. Hello, sir. I have one question. Yeah, please. सर इकबाल सिंह फ्रॉम पंजाब। मेरा सर ये क्वेश्चन है, जैसे एक इंश्योरेंस का है और एक लोन का। जैसे मेरे ज्यादा फ्रेंड सर्कल है जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, वो नई गाड़ियां और इंश्योरेंस का तो काम उनका ज्यादा रहता ही है,
ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लोन है वो किन किन बैंकों का है, और मतलब कि इसमें मैंने लोन सेगमेंट में जाके देखा हमारे पास 4-5 स्टेट है, मतलब पंजाब में अगर वो उनको क्योंकि गाड़ी नहीं लेंगे तो वो उनको लोन भी करवाना पड़ेगा और इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, मतलब 2 काम हो गए। आप वो 15 दिन हम अपनी खुद की कर रहे हैं लोन के लिए। आपको हर तरीके का लोन, जो भी लोन सोच सकते हैं, जो भी बैंक सोच सकते हैं, वो सारी सर्विसेज मिलेंगी 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन के अंदर हम ये पूरा अपना लाइव करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे वहां भी थोड़ा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो हम लोग भी अब शुरू कर रहे हैं काम अपने ऑफिस में। तो 15 दिन में हम आपको पूरा पोर्टल दे देंगे जहां पे आप हर तरीके का लोन सोर्स कर पाओगे। नॉट ओनली, कोई भी स्टेट छोड़ेंगे नहीं, कोई भी शहर नहीं छोड़ेंगे, छोटे गांव में भी लोन देंगे। ठीक है, बाकी तो हमारे स्टेट हेड तो रमन सर है लुधियाना से, मैं पंजाब से, मतलब वहाँ बाकी उनसे मिल लूंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं दिखाना जो चाहता हूं, अब देखिए वेंडर के पास केवल 100 कस्टमर हैं, और 100 कस्टमर में हमने केवल 10 कस्टमर को बोला है अपना लोन बेचो और 10 कस्टमर को बोला है रियल एस्टेट बेचो, तो उसकी इनकम करीब 10,27,000 रुपए तो इंस्टेंटली होती है। अच्छा, यहां पे इसको साल भर भी वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके पास रेडीमेड कस्टमर है। तो अगर आप अपने यूपॉज में इसको बनाते हो अपना एजेंट, तो ये रेडीमेड कस्टमर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इनका 50% आपके पास भी आना है। करेक्ट? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? प्लस अब आपके वेंडर की जो इनकम होगी, सर एक बार फिर सर प्लीज। जी, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को। लेट से आपने किसी वेंडर के पास गए, उसके पास तो उसका रेडीमेड यूजर बेस होगा, मिनिमम 100 तो होगा, अगर कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी भी है तो। जी सर। अब अगर वो छोटे से छोटा व्यापारी केवल 100 कस्टमर अपने ग्लोबल गार्डनर में लाता है, क्योंकि अब उसका खुद का यूपॉस हो गया ये, तो वो एक्चुअली यूपॉस ग्लोबल गार्डनर को कस्टमर नहीं दे रहा है, वो अपने लिए कमा रहा है उस पर। जी सर। तो 100 कस्टमर, अच्छा इसको हम ये भी नहीं बोल रहे हैं तुम हर दिन हर महीने 10 कस्टमर या हर महीने 100 कस्टमर लाओ, ये तो इंस्टेंटली 100 कस्टमर को अटैच कर सकता है इसी महीने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये साल भर में, मतलब उसी साल, जैसे हम बाकी लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई 12 महीने बाद इनकम कंसिडर करो, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा इनकम तो इंस्टेंटली चालू हो जाएगा, मतलब 85,000 रुपए महीना तुम्हारा इंस्टेंटली चालू हो गया। अगर मान लीजिए उसको 6% कमीशन देना भी पड़ रहा है और में डालता है आपने। विकास जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। विकास जी, एक चीज पूछना था, जो ग्लोबल गार्डनर का अपने कमीशन सेट करता है 6%, उसमें ये किस तरह से सेट कर सकते हैं? यानी बाइफरफिकेशन हो सकता है या अदर कमीशन स्ट्रक्चर है क्या इसका कुछ और? बिल्कुल, इस पूरा स्ट्रक्चर आपको वेंडर मॉड्यूल में मिल जाएगा, जहां पे 5% से लेके 45% तक का कमीशन आप ले सकते हैं कस्टमर से। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर हैं। मैंने यहाँ पे सबसे लोएस्ट कंसिडर इसलिए किया है क्योंकि जब ये 6% में कमीशन में वेंडर बनेगा हमारे वहां, तो इसको हम डबल के जीजी कॉइन्स भी दे देंगे। करेक्ट? क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड कि आज जितने प्रोडक्ट्स, जो फॉर एग्जांपल एक वेंडर ने कोई प्रोडक्ट सेल किया जी, बट सर उसमें एक्चुअली जो एक मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट से जो अभी वर्किंग हो रही है, जो परसेंटेज ऑफ इनकम है उसमें 2% या 3% वाला ही मार्जिन है। तो आप मुझे बताइए ना वो कौन सा बिजनेस है ऐसा, मुझे नाम बताइए। सर मोबाइल से और लैपटॉप से। सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ये है, तो मोबाइल और लैपटॉप आप हमारे वहां फ्लिपकार्ट से भेज दीजिए। और बताइए, अगर उसके पास मार्जिन कम है तो हमारे वहां से भेज दे, वरना उसके पास मार्जिन ज्यादा है तो वहां से भेज दे। ओके, मतलब आपका कहना है कि डायरेक्ट यूपॉस से सेल कर दे। सिंपल, उसके पास मार्जिन कम है ना, बट हमने मार्जिन ज्यादा ले रखे हैं यहाँ से, हमारे थ्रू भेज दे। ओके, तो सर अगर वो वहां से सेल होगा तो यूपॉस वेंडर को तो सर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना इसमें, क्योंकि वो यूपॉस से गया है। नहीं, यूपॉस से गया है तो उसको 50% कमीशन तो अभी भी उसको मिल रहा है ना, और उसका कस्टमर नहीं भाग रहा है उसके पास से। आज आपसे ही पूछ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, समझिए। आप अभी जाते हैं लोकल वेंडर के यहाँ, उसने बोला भाई ये मोबाइल 10,000 रुपए का है, आप तो उसको कटाकट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखते हैं, वो वहां पे मिल रहा होता है 8,500 रुपए का, आप कहां से खरीदते हो? सर वो 100% एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, मेरा सिर्फ क्वेश्चन यही है कि फॉर एग्जांपल यूपॉस से हमने उसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से सेल करवा दिया, ठीक है, ठीक है, जो वेंडर उसको लेके आया था, जो वेंडर लेके आया था, उस वेंडर को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। उसको एजेंट बना सर, उसको एजेंट बनाओ। आपने बनाया तभी तो वो कस्टमर लेके आया ना, उसको कमीशन। और दूसरा चीज, उसको जो कमीशन मिला उसके 10 टाइम्स जीजी कॉइन भी मिलेगा। मान लीजिए उसको 0.5% कमीशन मिला, मगर वो 0.5% उसका 0.5% नहीं है, वो 5% है,
क्योंकि 10 गुना जीजी कॉइन भी तो मिल रहा है। अभी मैं जीजी कॉइन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आपकी जो इनकम में ऐड हो रहा है 10 टाइम्स जो जीजी कॉइन है, ये तो एक आपने 10 लाख कमाया तो 1 करोड़ तो ये भी कमाया। और माई सर्किल तो आप कूद सबसे पहले चला सकते हो, क्योंकि आपके पास तो कस्टमर बेस है, 100 लोगों का कस्टमर बेस है। हमें तो 6 ही लोग चाहिए होते हैं ना माई सर्किल शुरू करने के लिए। अभी उस इनकम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको दूसरी चीज बोलता हूं, मान लीजिए वेंडर को 5% देने में भी आफत हो रही है, तो ये बोल रहा हूं ना वो बाकी चीजों से हमसे कमा ले, जो अपने बिजनेस में वो कमा रहा है। आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वेंडर के पास जब आप जा रहे हैं, मान लीजिए वेंडर को आपने बोला भाई तुम्हें 6% हर चीज पे देना पड़ेगा, और तुम मान लो लाख रुपए की महीने की सेल करते हो, तो तुम हमें कितना दोगे? 6,000 रुपए महीना, ठीक है। बट तुम हमसे कमा कितना रहे हो? 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख में से मैं कह रहा हूं तुम पे चलो तुम 6,000 रुपए कम कमा रहे हो, तुम 1,07,000 रुपए, तुम समझ लो 1 ही लाख रुपए तुम हमसे महीने का कमा रहे हो। तो तुमने अपनी चीजों पे भी 100% कैशबैक दे पा रहे हो। कस्टमर अब तुम्हारा कहीं जा नहीं सकता, और तुम कमा तो हमसे रहे हो ना, तुम हमसे ही कमा के हमको वापस कर रहे हो, क्योंकि यूपॉस हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये इसका एक्सपेंस नहीं है, ये उल्टा उसकी अर्निंग है, क्योंकि उसको अपने यूपॉस दिया है। हाँ, ये वेंडर अगर बिना यूपॉस के है, या ये एजेंट नहीं है और ये यूपॉस ओनर भी नहीं है, तो इसको थोड़ा खटकेगा कि यार ये मैं पैसा कैसे दूं। बट जब हमसे 1 लाख कमा रहा है और उसमें से उसको देना है 6,000 रुपए महीने का, तो वो कूद के देगा आपको, उल्टा आपको प्रणाम करेगा। यार ये तो आज तक स्कीम कोई बताने नहीं आया था कि पैसे लेके पैसे देने हैं। आज तक आते हैं। सर अपनी प्रायोरिटी यही है कि अगर किसी वेंडर को हम लोग आगे चल के यूपॉस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बेनिफिट और उसको ज्यादा पास ऑन होंगे। आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं। अब आपने उसको दिखा दिया कि तुम हमको हमसे 12,90,000 रुपए साल का कमाओगे, ठीक है, जिसमें आपने माई सर्किल 0 रखा है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, माई सर्किल 0 है। अगर ये 10% भी वो वेंडर कर पाएगा तो वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए कमाएगा। मगर अगर हम माई सर्किल को बिल्कुल 0 ही माने अभी, तो भी 12,90,000 है, मतलब लाख रुपए महीने का, 1,07,000 रुपए महीने का है। करेक्ट है? बट अब आप उसको दूसरी चीज दिखाइए कि साहब ये आपका एक्चुअली 10 लाख का फायदा नहीं है, हर महीने 10 लाख का, हर साल 10 लाख का नुकसान है, मतलब 85,000 रुपए महीने का नुकसान है। क्यों? क्योंकि 50% जो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो, वो आप 1 महीने का भी अगर कॉस्ट देखो ना, तो उसकी कम कीमत में आप अपना खुद का यूपॉस ले सकते हो मुझसे। तो वो आप 10 लाख रुपए आपको नहीं कमाने देगा, वो अगले महीने ही आपसे 54,000 रुपए का खुद का यूपॉस खरीद लेगा, बोलेगा मैं खुद कर लेता हूं। बट आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे ही हम एक एसीपी 50 यूपॉस पे पहुंचता है, हमारे पास टोटल 18,000 एसीपी होने वाले हैं, और एक एसीपी 50 यूपॉस तक पहुंचा, उसके बाद हम यूपॉस बेचना बंद कर देंगे। फिर लोगों को झक मार के इसी यूपॉस में एजेंट बन के रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से आपके वेंडर भी तुरंत बनेंगे, आपके यूपॉस भी तुरंत बनेंगे, और आप हर वेंडर को अपने पार्टनर की नजर से देखो। हेलो जी हाँ सर, ये जो वेंडर है ये अपने पिन कोड का है, अगर दूसरे पिन कोड के वेंडर के साथ ऐसा डील करते हैं तो? अरे भैया ये कहीं का भी वेंडर है। अच्छा हाँ, ये भैया पहले तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद, मैंने आपने ये पॉइंट उठाया। आप यूपॉस में कहां तक ट्रेड कर सकते हो पहले तो ये बताओ? ऑल ओवर इंडिया। और वेंडर आप कहां रेफर कर सकते हो? रेफर ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। अरे केवल आप एक छोटी सी चीज खोगे, वो है 2.75% कमीशन ऑफ दैट कमीशन। अब 6,000 रुपए का निकाल के बता देता हूं। सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद है, मैं ये पॉइंट पूरी तरह से भूल चुका था कि मुझे बोलना था, और आपने ये बुलवा लिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। ये आपका लॉस, ये आपका लॉस है 165 रुपए का। मगर गेन कितना है? 85,000 रुपए का। तो आप क्या करना चाहोगे? 165 रुपए तो छोड़ सकते हो ना, पूरे इंडिया में करो काम, ये कहीं भी कर दो ना आप। मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरे पूरे पार्टनर भी बना सकते हो, पूरे इंडिया में यूपॉस भी बेच सकते हो, पूरे इंडिया में वेंडर भी बना सकते हो, और वहां के एसीपी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब उसके लिए काम कर रहे हो तो उसको भी ये बेनिफिट मिल रहा है लोकली। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वेंडर रिफर एज एसीपी करना है या यूजर्स के? आप एज यूजर रेफर करोगे ना, एज एसीपी भी आप रेफर कर सकते हो, दोनों तरीके से आप रेफर कर सकते हो। पर एसीपी को शायद आगे जाके मतलब नहीं मिलता है ना, उसको कमीशन एसीपी को नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है ना,
एसीपी वहां से निकल जाता है, रिजाइन कर देता है या कुछ और कर देता है तो शायद नहीं मिलेगा। बाकी अगर वो सिस्टम में रहता है तब तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा। अरे भाई हो गया ये सेशन में ही कौन सो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है मतलब जो एजेंट के वॉलेट है बीच में ला रहा है, उसका कमीशन ही ऐड होगा ना। एक से मैं इनको म्यूट करूं ये, वरना सबको सुना देंगे। हाँ जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं जो लोग बात कर रहे थे। विकास जी, अभी इसमें क्या हो रहा है कि हम एसीपी टर्म को बीच में लेकर के आ रहे हैं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा कि एसीपी वेंडर को रिक्रूट कर रहा है फिर से अलग अलग पिन कोड में। दिस इज ओनली मेकिंग योर सब एजेंट्स। नहीं, एसीपी रिक्रूट नहीं कर रहा है, एसीपी केवल रिफर कर रहा है। मान लीजिए मैं अहमदाबाद में हूं, मेरा कोई जानने वाला नागपुर में है, अब मैं नागपुर में उसको रिफर कर रहा हूं कि मुकेश भाई इसको वेंडर बना लीजिए, और मुकेश भाई उसको गए, उसको वेंडर ओके कर दिया, या मैंने ही उसका पूरा फॉर्म भर दिया यहां से। अब मुझे 2.5% जो मुझे मिलना था कमीशन वो मुझे मिलेगा और 2.5% आपको मिलेगा। बट मेरी तो बड़ी इनकम वहां से शुरू हो गई, वो मेरा यूपॉस के थ्रू शुरू हो गई। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैं अब ये जो हमारा जो मैं आपको जो बोल रहा था ना कि अपने ने एहसास प्रोग्राम किया था, व्हाट वाज हम ये बोल रहे थे ये 2 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये 6 महीने में हम पहुंचेंगे यहां पे। हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 6 महीने में बना पाएंगे, क्योंकि ये हम केवल 2 महीने में अचीव कर लेंगे। क्योंकि जिस दिन लोगों को मैं कह रहा हूं ये लाखों की बात छोड़ दीजिए, किसी को 10,000 रुपए की कमाई मिली ना आपसे, वो तुरंत अगले घंटे में आपसे यूपॉस ले लेगा। जैसे आपने जूम को कैसे एकदम वायरल किया, आज हम जैसे मेरे पास भी ये पेड वर्जन है, जूम ने क्या किया, पहले मुझे फ्री ट्रायल दिया कि भाई 40 मिनट आप फ्री करो, मेरी भूख बढ़ती चली गई। मैंने कहा नहीं यार, इस पे तो 2 घंटे की मुझे मीटिंग करनी है, मुझे अनलिमिटेड लोगों को बुलाना है, मुझे 500 लोगों की मीटिंग करनी है। आज मैं 6,000 रुपए महीने का पे करता हूं जूम को। करेक्ट? ये वो चटनी है जो आप एक्चुअली बता के सबको आप अपने सिस्टम में ला सकते हो, और इसमें सबका फायदा ही होना है, नुकसान तो कोई बोल ही नहीं सकता है। करेक्ट? विकास जी, वन मोर क्वेश्चन, जो वेंडर्स को ऐड कर रहे हैं जी, उसमें सर्विसेज वाला पार्ट भी हम कहीं ऐड कर सकते हैं? द पर्सन हु आर प्रोवाइडिंग ओनली सर्विस, एनीथिंग प्लीज अगेन अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको। You recruit anyone who is doing an economic transaction, wherever money is involved, that person can become our vendor. It is doctor, it is plumber, it is soft skill trainer. He is anything related to money can become a vendor in Global Garner. विचार कर राघु, नारायण मारे પાસે કેટલું ટેન્શન હશે। हेलो जी, हाँ जी, टेंशन નો विकास जी, हेलो। मैं जिन लोगों को बाकी लोगों से बात करनी है वो अनम्यूट क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। विकास जी, मुझे सबको म्यूट करने दीजिए पहले, प्लीज 2 मिनट होल्ड करिए। विकास भाई, यस प्लीज, अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। विकास जी, हेलो। हाँ जी, सर इसमें जीएसटी का क्या इशू था कि जीएसटी रजिस्टर होना चाहिए? नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वेंडर के लिए पूछ रहे हैं ना? वेंडर या कोई अपना रजिस्टर बना रहा है, एज पर लॉ ऑफ द लैंड अगर उसको जीएसटी नहीं चाहिए तो हम उसको पुश नहीं करते हैं, बट हम अपने वेंडर्स को चाहेंगे कि वो जीएसटी ले लें, क्योंकि जीएसटी का उनको सेट ऑफ मिलता है, उनको फायदा ही है जीएसटी से, और जीएसटी बहुत महंगा अफेयर नहीं है। जीएसटी अपन काटते हैं कि जैसे डॉक्टर को बनाते हैं तो क्या होगा, कोई डॉक्टर को अपन बनाते हैं तो सिंपल, हम तो जीएसटी चार्ज ही करेंगे। अगर उनके पास जीएसटी नंबर होगा उनका तो उनको सेट ऑफ मिलेगा, अगर जीएसटी नंबर नहीं होगा तो उनको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अच्छा, जीएसटी का सिर्फ फायदा है, ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है कि जीएसटी नुकसान है। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है दैट इज एट लॉस्ट। जीएसटी का इतना बढ़िया, मैं आपको बहुत सिंपल वे में अगर जीएसटी समझाता हूं, जीएसटी एक ऐसा बॉल है जो रोलिंग बॉल है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो लूजर है, क्योंकि वो पे करता है फाइनल जीएसटी। जीएसटी नंबर है वो बॉल पास करता चला जाता है। विकास जी, एक और क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। सर जीजी कॉइंस का क्या है सर, वो कन्वर्शन क्या है उसका, उसमें कैश में अगर जाना चाहें तो? मैं उसका जवाब अपने बीओपी या किसी भी क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने, इसमें अभी आप केवल कैलकुलेटर से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछिए, वो सब मैं बात। सर ये टैक्स रिलेटेड और एक सेशन कीजिए ना सर, एक सीए से वगैरह लेके, यानी सबका क्लियर हो जाएगा सर, ये जीएसटी वगैरह का तो रजिस्टर करिए, उसमें हम यही सब बातें करने वाले हैं। अच्छा, विकास जी, विकास जी जी,
विकास जी, मेरा एक सवाल था, शायद इससे कनेक्टेड है नहीं है पता नहीं, लेकिन थोड़ा मुझसे 2 ही 3 सवाल पूछे इस एक्सेल में अपना आप सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। ये यस वेंडर के बारे में पूछ रहा हूँ। ये LIC, ये जो इंश्योरेंस से लेकर काफी लोगों के जो सवाल है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि हम यहाँ पर इंश्योरेंस कैसा खोल पाएंगे, हम इंश्योरेंस कैसा ले पाएंगे, एजेंट कौन रहेगा। नोट कर लीजिए अपने पास srabima.com, srabima.com। इस पे आप जाइए, आप इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो समझ लीजिए ग्लोबल गार्डनर के साथ कर रहे हैं। Vikas ji, my question is related to my question is related to spreadsheet. If you can share it again, Vikas ji. मुझे 2 चीज जाननी थी। एक तो ये आप अगर ये 100% जो है कस्टमर ट्रांसफर, उसकी जगह पे 50% कर सकते हैं या 25% कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द इफेक्ट? अरे सर रुकिए ना, मैं 0 करने वाला आदमी हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं? 50 भी क्यों करें? नहीं सर, लेट्स डू इट 0। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, कस्टमर की बात कर रहा हूँ। कस्टमर जो आपने बताया है, तो वो वेंडर जो है वो 100% डाइवर्ट करेगा, इंस्टेड ऑफ दैट रिड्यूस दैट पर्टिकुलर फिगर टू व्हाट? to probably like 50. Okay, done. So this is the income, 6,82,000, and per month total income would be 71,000 every month. Now अभी सेकंड क्वेश्चन उसका रिलेटेड ये था, जो अगर माई सर्कल में अगर हम लोग डालते हैं 10% which you are talking about, तो क्या हो जाता है? सिंपल, 4.86 lakhs per month, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए महीना। ये माई सर्कल का इफेक्ट, व्हाई, हाउ कम माई सर्कल का इफेक्ट इतना हो जाता है? सिंपल, 10% मतलब आपके कितने यूजर हो गए? 5 यूजर, राइट। 5 यूजर अगर 1-1 करोड़ रुपए बना रहे हैं तो मतलब आपको 10-10 लाख मिल रहा है सबसे, राइट। तो 50 लाख हो गया। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन अ ईयरली साइड दैट कैन हैपन। यस, इसलिए हम इसको मंथली नहीं बोल रहे ना, ईयरली आया तो हमने इसके बाद मंथ में डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है सर, ठीक है, ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू। हेलो विकास जी, या हाँ, जैसे मान लीजिए अदर पिन कोड में वेंडर बना रहे हैं जी, वहाँ का जो एसीपी है उनको वो अप्रूव करना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है वेंडर रजिस्टर्ड तो हो जाता है, एसीपी उसमें ध्यान नहीं देते, तो इसका क्या प्रोसीजर है? ध्यान नहीं देते हैं तो हम हमारे वहाँ के स्टेट हेड से बात कर सकते हैं कि भाई अपने आप सीपी एमसीपी से बात करिए। अगर वो रिजेक्ट करना चाहते हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी को वेंडर अप्रूव करवाना चाहें वो 100% हो ही जाए। अगर वहां के एसीपी और सीपी नहीं चाहेंगे तो वो नहीं अप्रूव होगा, बट उसके लिए उनको देना पड़ेगा कि ट्रेड क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। सपोज मान लीजिए कभी होता है कि इंटेंशनली उसको रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट ना करे। सिंपल समझिए, देखिए हम सब यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, ही विल हैव सम सर्टेन टू इट, नो? मतलब रिजेक्ट करने के पहले उनको रीजन तो बताने पड़ेंगे। बिल्कुल 100%, वो टेंशन मत लीजिए, वो उसके लिए हमारे सब जो हमारे स्टेट हेड्स हैं बहुत एथिकल लोग हैं। अच्छा, उस केस में हेलो, somebody else is asking question। हाँ, विकास बोल रहा हूँ कि एक कस्टमर मेरे एरिया का नहीं है, वो वेंडर बेसिकली, उससे मैंने 6% में फाइनल किया है और वो अप्रूवल के लिए जाता है लोकल एसीपी के पास। तो वो अगर एसीपी बोल रहा है कि नहीं 6% में नहीं, मैं 7 या 8% में करता हूँ उसको फाइनल, तो फिर वो क्लैश हो सकता है। मतलब कैसे हो सकता है इस केस में? हो सकता है ना, मैंने बोला ना कि लेट्स से एसीपी आपने मान लीजिए कोई वेंडर ढूंढा, लेट्स से आपने किसी कपड़े वाले को ढूंढा, अब उस एरिया में वो एसीपी कपड़े वालों से लेट्स से 9% कमीशन ले रहा है और आपने बोला कि यार तुमको कपड़े वाले मैं तुमको 6 महीने बना देता हूं, तो वो एसीपी 100% ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि 2.75% तो उसको भी जाना है ना, तो वो 2.7% है, तो वो अपना नुकसान क्यों होने देगा, जबकि वो 9% का 2.75% ले सकता था, तो आपके कहने पे वो 6% का 2.75% क्यों लेगा? ओके, ये तो ठीक है। सपोज मान लीजिए उनका कॉन्टैक्ट्स में है ही नहीं, वो उसको बना ही नहीं पाएंगे। सपोज हमारे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे उस वेंडर के साथ,
और वो हमारे कहने पे बन रहे हैं, और हो सकता है कि 9% देने के लिए तैयार ना हो, मतलब वो अगर खुद भी चले जाए एसीपी। देखिए फिर समझिए, आपने उसको बैठे बैठाए एक वेंडर दिया है, कोई ऐसे जबरदस्ती मना नहीं करेगा। ही विल हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस, और उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना। ये जो मैनेजमेंट टीम बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि ये हर चीज को मॉनिटर करती रहेगी। कोई ऐसा नहीं है कि बेस पे अपने मना। Sir, I think this discussion is going. Okay. Discussion is going out of the topic. Proceed further, sir. Sorry. Please proceed further. हो गया सर, ये vendor का clear हो गया है. Let us come back to UPO अपना calculator. I am done with my calculator. If you have any query, you can ask me, or related to vendor only and this calculator only. I think you should start practicing your calculator first. Correct? If you have any query related to this calculator, we can again meet in the evening. Practice what we have just learned, and what we will do is I will send you the video of this entire presentation also. Just go through it. Please share the sheet also, sir. I'll share this new sheet also. In 10 minutes, you will receive everything. Sir, एहसास का YouTube बन गया क्या सर? Sorry? एहसास जो हुआ था ट्रेनिंग, उसका YouTube वीडियो बन चुका है? ऑलरेडी भाई, मतलब मैं तो मैसेज भेजने के लिए बदनाम हूँ, और आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो ऑलरेडी अपलोडेड। आई विल सॉरी, इट इज ऑलरेडी अपलोडेड। सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. And अच्छा, one more request. There is a Telegram group that we have created. Just subscribe to that, because some of the videos and everything is placed there. Everything we do related to videos or any content is already in that channel. So you can anytime go and refer to that channel, right? So just subscribe to that channel on our Telegram page. Yeah, sir. Okay. Sir, एक wallet का question था. It's time to wind up, and let's meet in the evening if you have any query. Else it is good. And finally, the Kautilya program. Please register yourself for the Kautilya program. We are starting that program from Tuesday onwards, because orientation is not required for this batch. So we are starting for Kautilya, in which we will talk about very micro level things. What to talk to a CA, what to talk to a vendor, let's say, who is dealing in, what to talk to whom. Every micro level. सर उसका प्रोसेस कैसे, सबमिशन का वो फॉर्म अपने ग्रुप में डाल दिया है सर? या आपके जो लीडर हैं, आपके CP, ACP, MCP, स्टेट हेड, आप उनसे बात करिए, वो हमें लिस्ट भेजेंगे, और ट्यूसडे से हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने अपना कैलेंडर आप सबके साथ शेयर किया है मेरे ग्रुप्स में, उसमें उसकी मीटिंग आईडी ऑलरेडी दी हुई है। आप बस उस मीटिंग आईडी को यूज करके किसी भी दिन में किसी भी जगह आ सकते हैं। Only applicable to those who have attended Gurukul. Not exactly, कोई भी आ सकता है। उसमें मैं बिल्कुल ओपन सेमिनार कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेसिक बातें करूंगा। जैसे अभी किसी ने पूछा है कि वेंडर में ये एजेंट कैसे बनाते हैं यूपॉज में, सो विल टीच यू हाउ टू मेक एन एजेंट, विल टीच यू हाउ टू ऑनबोर्ड अ वेंडर, वी विल टीच यू हाउ टू डू अ ट्रांजेक्शन, विल टीच यू हाउ टू यूज योर GG coins. So this is a very basic program of 7 days where we will make you 100% equipped with the knowledge. मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, बट मंडे being an orientation day, and this batch doesn't require orientation because they have already gone through the EHSAS program. So orientation is more of a EHSAS program, and rest from Tuesday onwards it would be more of a basic knowledge of the product. So just go through that calendar which I have just shared in the, I think last night I had shared it. Yeah. Right? Just go through that calendar and plan your calendar also accordingly. Okay? Thank you. Thank you very much. It was great having you all on Sunday morning. Thanks very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.